নাম্বার 12 কি কইছে? Find all the points on the line this that lies of the unit distance from the line this. বলছে এমন সব পয়েন্ট লাগবো এই লাইনের যাতে এটাতে 1 ইউনিট ডিস্টেন্সে থাকে, ঠিক আছে? তো মানে সিচুয়েশন ইজ সামথিং লাইক দিস। মনে করে আর একটা লাইন, তো এটার একটা পয়েন্ট হচ্ছে পয়েন্ট, সে এমন পয়েন্ট বার করতে, মনে করে এটা এক্স প্লাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু 4 আর এটা হচ্ছে 4x প্লাস 3y ইজ ইকুয়াল টু 10। বলছে এমন একটা ওই লাইনেতে এমন একটা পয়েন্ট বার করো, বা এমন পয়েন্ট একটা না অনেকটি হতে পারে, ঠিক আছে? ফাইন্ড অল দ্য পয়েন্টস যেটা এখান থেকে 1 ইউনিট দূরে, সাপোজ এটা 1 ইউনিট দূরে এখান থেকে ডিস্টেন্স, ঠিক আছে? পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স এগো ठीक है 1 यूनिट। देयर में भी अदर्स ऑल्सो, बाकी भी हो सकता है, ठीक है ना? जैसे यहाँ से भी हो सकता है परपेंडिकुलर, ঠিক আছে? লাইনটা তো আমি 13 আছি, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ये भी 1 हो सकता है। এমন যতটি পয়েন্ট আছে হইতে পারে 13 ব্যাকে, যদি থাকে आएगा ऑटोमेटिक। तो আমি একটা পয়েন্ট নিতে লাগবো, लेट द पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। इसमें से अगर कोई भी पॉइंट उठाएंगे तो कैसे उठाएंगे? लेट द पॉइंट in the line x plus y equal to 4 is, मान लो x को हम h ले लिया, x को हमने h ले लिया, তাহলে y कितने হবে এটার মধ্যে? যদি y is equal to 4 minus h, इस लाइन से उठाया, ठीक है? এই লাইনটাতে তুলতে লাগবে আর কোনো পয়েন্ট, ঠিক আছে? এই লাইনের একটা পয়েন্ট h ধরলে তাহলে আরেকটা কত হয়ে গেল? 4 minus h, ঠিক আছে? Now it is at a distance of 1 unit from 4x plus 3y. So what is given? D is equal to 1 unit. So D এর formula कितना? Mod of 4x1 plus 3 into 4 minus h minus 10 by under root 4 square plus 3 square. इसका mod is equal to 1. ठीक है? 4 square plus 3 square कितने से होगा? 5 नीचे, so it will be 4h plus 12 minus 3h, इधर mod is equal to 5। अभी लास्ट डे में हमने देखा था if you remove mod then it should be plus minus, so h plus 12 should be equal to plus or minus 5। दोनों एक साथ रख के भी हम लोग कर सकते हैं और we can use और ऑल्सो, ठीक है? और ছাড়াও আমরা করা যায় একসাথে রেখে। h इक्वल टू प्लस माइनस 5 माइनस 12, तो एक क्या हो जाएगा? प्लस 5 माइनस 12, एक हो जाएगा माइनस 7 और एक होगा माइनस 5 माइनस 12, सो दैट विल बी माइनस 17। सो अल्टीमेटली यू विल गेट 2 पॉइंट्स, दो ऐसा पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है? सो देयरफॉर द पॉइंट्स आर x अगर माइनस 7 है h কোন 10 এটা এদিকে আনতে লাগে, ডিসটেন্স ফর্মুলা ইয়ে আছে, ভিডিও দেখছো না? ইজ ইকুয়াল টু 0, ডিসটেন্স ফর্মুলার পয়েন্ট এটা, ঠিক নেই? ডিসটেন্সের পয়েন্টের থেকে লাইনের ডিসটেন্সের ফর্মুলা ax1 প্লাস by1 প্লাস c সব একদিকে আসবে না, ডিভাইড প্লাস 4h প্লাস 12 মাইনাস 3h মাইনাস 10। ও এটা কইতেছো? তাহলে বলেছি ওইদিকে ভুলে গেছে, আমি মনে এটার কথা বলতেছি। तब तो मेरा गलती है। देन इट इज माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज, ठीक तो? सो इट विल बी h plus 2 ना, h plus sorry, so if it is h plus 2, so then the answer will be একটা হবে plus 5 minus 2 that is 3 আর একটা হবে minus 5 minus 2 minus 6।
একটা যদি 3 হয় তো একটা বলতে হবে 4 minus 3 1 আর একটা পয়েন্ট and -7 হলে -4 minus -7 that is 11. So these are the answers. ঠিক আছে? বাড়িতে ট্রাই করছিলে কিছু? সময় পেয়েছো না? ঠিক আছে। তোমার মেটেরিয়ালটা জেরক্স হয়ে গেছে, আজকে দেখি বাড়িতে আনবো, নাহলে কালকে আনো, संडे को दे देंगे and from next week we will have one more day, most probably on Saturday. ठीक है, आगे बढ़े। Next will be 50. Parallel line distance formula last day আমরা দেখছিলাম। You can use the formula. You can use the formula or formula इस तरह करते पारो और एक में से पॉइंट निकाल के दूसरा में डाल सकते हो, ठीक है? तो जरूरी नहीं है। If you can remember the formula c1 minus c2 by under root a square plus b square. बट उस फॉर्मूला के लिए व्हाट वी मेंशन क्या होना चाहिए था? কিছু একটা কন্ডিশন আছিল এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করতে। শুধু প্যারালাল হলে হতো না, আর একটা কন্ডিশন আছিল। কি আছিল? These two should be same. Otherwise এটা সেম হতে লাগবে। বলে সেম না হলে তো প্যারালাল হতো না, না সেম না হলেও প্যারালাল হতে পারে। ধরো ইনটু 2 বেড়ে দিলাম আমি, তাহলে ওটা সেম জিনিস হয়, বাট ওই ক্ষেত্রে কিন্তু এই ফর্মুলা লাগালে হবে না। This condition for this formula, this it should be entirely same. Then you can apply distance between two parallel lines. What is the formula? C1 minus C2 by under root a square plus b square. Mod we will take because which C1 is greater, which C1 is smaller, we don't know. 8 square plus 15 square. This is 8 square plus 15 square. And C1 minus C2, that is minus 36 minus 32. 68 divided by 17, that is 4. So the distance is 4. What is the meaning of mid parallel? Mid parallel means parallel तो ठीक है और दोनों का एकदम बीच से गया है, that is the meaning of mid parallel. So the distance between them should be equal. ठीक है? मतलब situation is something like that. एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है। जो तुम्हारा थर्ड लाइन है जो पैरेलल है, that should be mid parallel. इन दोनों के बीच में होना चाहिए. So that the distance between this and this should be equal to this and this. ये दोनों सेम होना चाहिए। D1 should be equal to D2. That will give you mid, middle में है, and parallel तो you can understand from here it is parallel, ठीक है ना? तीनों parallel है। लिख देना, the slope of all three lines are कितना हो जाएगा slope 12/5. M1, M2, M3 are 12/5. So therefore they are parallel. So therefore they are parallel. Now distance between 1 and 2 D1 निकालो, distance between 2 and 3 निकालो. You will see that both are equal. From that you will show. So you suppose this is, আমি এটা খুঁজে দিই বোর্ডে, হ্যাঁ তারা লেগে তোমরা পড়তে যাবে। So these are the three lines. हमको इसको मिड पैरेलल दिखाना था, ठीक है ना? ये 1 है,
ये 2 है, ये 3. So calculate M1. So it gives M1 is equal to minus 12 by 5. M2 is equal to minus 12 by, this is 12 minus 5. Only 12 by 5. So it will be 12 by 5. So therefore they are parallel. Now to find mid parallel, you need to find D1. D1 क्या है? Distance between 1 and 2. So C1 minus C2, 7 minus minus 3 divided by under root 12 square plus 5 square. It will be 20 by 30. Similarly, D2 if you calculate, it will be minus 13 minus minus 3 divided by 12 square plus 5 square. So it will be again, so 7 plus 3, 10. It will be 10 by 30. So D1 is equal to D2. Therefore, line 2 is mid parallel to line 1 and 3. Done. Next কোনটা রয়েছে নি? কত নাম্বারটা আসলো নেক্সট? আর দিছি নি 19 হয়েছে এটা 19 হয়েছে নি? হয়েছে না? তোমার হয়েছে নি? হ্যাঁ 19 কি কইছে 19 এ? The perpendicular distance of a line from origin is 5 and its slope. Origin দিছে 5 ঠিক আছে? Origin তে perpendicular distance. This is given 5. This is given 5. তো তোমার মনে হতে পারে যেটা যদি নর্মাল ফর্মে নি করে নেই, বাট নর্মাল ফর্মে একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবো, ইন এডিশন টু দিস আই নিড দিস ওয়ান, ये वाला অ্যাঙ্গেল। এটা কিন্তু এটা দিছে না, এখানে কোনটা দিছে? স্লোপ দিছে, মিন্স দিস অ্যাঙ্গেল ইজ गिवन। ठीक है ना, हमको चाहिए और ये थीटा था, बट थीटा यहाँ पर दिया हुआ है। सो वंस यू नो थीटा, अल्फा कैन बी फाउंड। ठीक है ना, सो tan थीटा इज इक्वल टू -1 which will give you theta is equal to 135 degree. So therefore alpha is equal to what is it? 135 minus 90, because 90 plus this is equal to this, so it will be 45. Now if this is 45, now you can apply this one. কি আসল নরমাল ফর্ম? x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. X cos 45 plus sin 45, p কত দিয়েছিল? 5. x plus y is equal to 5√2. ঠিক আছে, বোঝা গেছে তো? এরপরে নেক্সট কি আছে স্ট্রেট লাইনে? আর আছে কিছু বোর্ডে? তো একটা মিসলিনিয়াস আছে। মিসলিনিয়াস ইজ সেম অ্যাজ হোয়াট উই হ্যাভ ডান। আচ্ছা, শিফটিং অফ অরিজিন আছে 20i না? 20i তে কয়েকটা কোয়েশ্চেন টিক করো, নতুন কিছু নাই জিডিআই সিটির উপরে, জাস্ট কোয়েশ্চেন টিক করো। 710 মানে থিওরি কিছু নাই কোয়ার মতো। কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 4 7 10 10, ঠিক আছে না? সেম টাইপের, নতুন কিছু করার নেই, জাস্ট সলভ দিস। নতুন কোয়া আছে এরপরেরটা, শিফটিং অফ অরিজিন। ফ্যামিলি অফ সার্কেল পাসিং থ্রু ইন্টারসেকশন। আর দুইটা আছে না স্ট্রেট লাইনে? IJK
concurrent মানে একই পয়েন্ট দিয়ে দেয়। If they pass through same points, then they are 20i exercise. Where we are doing exercise 20i. Question number 1, find the point of intersection. ये तो easy है, प्रथम ना। I have also आशा करी simple class 10 में हमने solve करी हमने। We will be solving that one. X is equal to 2y minus 7. Direct put भी कर सकते हो, न्यूमेटरी मैथ कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इधर होता है इसे y होता है इसे 3. So if you put the value of y, you will get x is equal to -1. So the point is -1, 3. ये तो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट फोर्थ वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सो दैट दे आर कनकारेंट। अच्छा, कनकारेंसी लेके একটা ডিটারমিনেন্ট দিয়ে ফর্মুলা তোমরা তো তাড়াতাড়ি আইতো না মনে হয়, আছে নাকি না? নাই, তাহলে তুমি দুইটার থেকে এটা দিয়ে করতে পারো, কোন নাই। যে হালাকি তোরা ইজি वाला ভার্সন যেইতে গেলে পাইবা, ঠিক না, ডিটারমিনেন্ট দিয়া। বাট থাক, এখন বোর্ডে যেমন আছে আমরা এমনি করি। দিস টু আর কনকারেন্ট। তো কনকারেন্ট আমরা কি করব, ধরো এতে যেটা দেওয়া আছে এটা সলভ করে নিই আগে, ঠিক আছে না। ইকুয়েশনসটি যেটা দেওয়া আছে এটা আমি ইকুয়েশন 1। কনকারেন্ট মানে কি, তা তিনটা লাইন একই পয়েন্ট দিয়ে যেতেছে, ঠিক আছে নি। সো হোয়াট উই উইল ডু, আমরা ওই যে সবুজ দুটো দিয়ে পয়েন্ট এটা বার করব, ওই পয়েন্ট এটা লালটা দেবো আমরা, যদি স্যাটিসফাই করে দে অল পাসেস থ্রু সেম পয়েন্ট। বাট থিমটা ওইটাই আছে, তো ওটা যদি থাকে তাহলে আমরা 3x - y আইছে না, এটা -2 = 0। इसके साथ we will be solving equation 1, এটা মনে করি এটা 1, and then equation 2 will take the third one as equation 2, that is 2x plus y minus 3 = 0. So what we will do, we will 2x plus y minus 3 = 0. If we add these two, 5x equal minus 5 equal to 0 or x equal to 1. So once you know x equal to 1, that means your y will be equal to x and y bar ho gechhe 1 1. So you put this point in equation 3. So 1 1 lies in equation 3. So 3 क्या है, 5x plus ky, because they are concurrent, that's why they should lie. It will be 5 plus k minus 3 equal to 0, which will give you k equal to -2. So that is the answer of question number 4. ठीक है, आगे बढ़े। এটা তো না, এটা কোনটা কোনটা কোয়েশ্চেন নাম্বার 7 আর 10 করেছিলাম না, বুঝে নি কোনটা হয়েছে না। 10 ট্রাই করো তাহলে, একবারে দুটোটা দেখে দেবো। Find the area of the triangle formed by this. ये सबसे जो ट्रायंगल का एरिया बन रहा है, you have to find that one. टेनটা ট্রাই করো, একবার দেখাই দেবো কোনটা হয়েছে না। আচ্ছা, তাহলে এটার মধ্যে কারো লাগলো এলে, আচ্ছা দেখতে 7 নাম্বার কি হয়েছে, ফাইন্ড দ্য এরিয়া অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম বাই এ লাইনস।
तो लेट अस ड्रॉ दिस लाइन, ठीक है ना, ये सब लाइन ड्रॉ करने से विल गेट द आइडिया ऑफ द ट्रायंगल, कहाँ से जाएगा। सो x इक्वल टू 0 कौन सा लाइन है, x इक्वल टू 0 मीन्स वी नोट y एक्सिस इज द x इक्वल टू 0, ये वाला है, दैट मीन्स योर y एक्सिस इटसेल्फ, ठीक है ना, योर y एक्सिस इटसेल्फ इज x इक्वल टू 0। फिर क्या है, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 क्या है, y एक्सिस का पैरेलल, दिस इज योर y इक्वल टू 1, सेकंड वन, एंड देन थर्ड वन 2x प्लस y इज इक्वल टू 2। इसको थोड़ा ड्रॉ करते हैं और फटाफट ड्रॉ करते हैं, ঠিক আছে না, কেমনে ড্র করব আমরা বুঝলাম। ड्रॉ करने लगे विल टेक द हेल्प ऑफ, सबसे इजी कौन सा है, डिवाइडेड बाय 2 कर देता है, दैट इज x प्लस y बाय 2 इज इक्वल टू 1, मींस इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना, एंड दिस पोजीशन इज 1 क्योंकि ये 0,1 है। तो अपने को पता है x एक्सिस में ये 1 जाना चाहिए और y एक्सिस में 2 जाना चाहिए, सो दिस टाइप का एक ग्राफ है। इफ माय ड्राइंग इज, ठीक है ना, ड्राइंग को थोड़ा माफ कर दो, समझो भावनाओं को, ठीक है। ये 1,0 है और ये है 0,2। देन व्हिच ट्रायंगल दे आर आस्किंग टू फाइंड, कौन सा एरिया हमको चाहिए, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हिच ट्रायंगल। ये दो रेड और ये व्हाइट, दो रेड और व्हाइट मिलके ये वाला जगह निकाले, सो यू नीड टू फाइंड द एरिया। तो हमको क्या चाहिए, ये पॉइंट अगर मिल जाएगा देन हाफ इंटू हाइट इंटू बेस कर पाएंगे, क्योंकि इसका हाइट तो हमको पता चल गया, हाइट कितना है 1 है, 2 माइनस 1 1, और ये बेस जानने के लिए हमको इसका कोऑर्डिनेट जानना होगा। इसका कोऑर्डिनेट कहाँ से निकलेगा, कौन सा इक्वेशन दो को सॉल्व करेगा, ये एक इक्वेशन है, एंड देन अदर इक्वेशन इज, कौन सा इसका इक्वेशन है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 2। तो इसको और इसको सॉल्व करो, सॉल्व दिस टू, ठीक है ना, y वैल्यू 1 बाय द x वैल्यू होगा। तो इफ इसको अगर हम सॉल्व करें, मान लो ये 1 है ये 2 है, क्या मिल जाएगा अपने को, सॉल्विंग फ्रॉम 1 एंड 2, y इज इक्वल टू 1 अपने को डायरेक्ट मिला और y का वैल्यू बैठा दिया, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू हाफ। तो अपने को ये पॉइंट जो P है, मान लो P का कोऑर्डिनेट अपने को क्या मिल गया, हाफ कॉमा 1, सो कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू हाफ कॉमा 1। सो इन द ट्रायंगल नाम दे दो AB, इन द ट्रायंगल ABP, तुमको AB मिल गया, AB मिल गया, हाइट मिल गया, बेस मिल गया, देन यू कैन फाइंड इट आउट। In triangle APB, height equal to 2 minus 1 1, height actually कौन सा है, AB, और बेस कौन सा है, AP। कोई भी एक ले सकता है, हमने इसको हाइट लिया, उसको बेस ले लिया, so the area will be equal to, that is delta half into height into base, it will be 1/4, ठीक है सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 तो लागू इमेज है, क्वेश्चन नंबर 5 टिक करो। फाइवेर मध्य 9 হয়ে যাব, 10 তো করতেছে। 5 एंड 11, 5 को भी टिक करो, 11 को भी, हाँ।
কোনটা এফোর কোনটা নিছো টেবিল নাম্বার নিছো নি হ্যাঁ because find the equation of the line perpendicular, find the equation of the perpendicular drawn from the point to this line, also find the coordinate. क्या निकालने बोला है? अभी एक मान लो ये एक लाइन है 10, ये कौन सा लाइन है 4x minus 4y plus 7 is equal to 0. एक पॉइंट है P -2, you have to find the equation of the perpendicular drawn. यहाँ से जो perpendicular draw होगा इसके ऊपर, the perpendicular that you will draw, you need to find the equation of this one, not perpendicular distance, ठीक है ना? Also find the coordinate of the foot, ये भी निकालना है, ये जो foot of perpendicular, ठीक है? तो इक्वेशन तो इस लाइन का इक्वेशन चाहिए रेड लाइन का, तो रेड लाइन का एक पॉइंट है और क्या चाहिए स्लोप चाहिए, स्लोप इससे निकल जाएगा, इसका स्लोप निकल जाएगा m1, तो इसका स्लोप निकल जाएगा m2, m1 m2 -1 करके, फिर वंस यू फाइंड देन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस वन, दोनों इक्वेशन मिल जाएगा तो दोनों को सॉल्व करने से वो पॉइंट भी मिल जाएगा, ठीक है ना? ए बी नाम देते पारो, এটা পি ডি, so find slope of AB, that will be your slope of AB, ঠিক আছে? AB এর স্লোপ কত হিসেবে মনে হয় আমরা এটা দেখে দেখে করতে লাগবে, ঠিক না? x minus 4y plus 7 is equal to 0 হয়ে গেছে, তাহলে y equal to কত হবে 1/4, सॉरी y equal to ना माने स्लोप equal to, so the slope क्या निकल जाएगा हमको 1/4 m1, तो हमको क्या पता है m1 into m2 is equal to -1, तो डायरेक्ट लिखना होगा m2 is equal to it will be -1, m2 भी निकल गया, therefore इक्वेशन ऑफ PD क्या हो जाएगा, अपने पास एक पॉइंट भी है P, ये भी, तो स्लोप पॉइंट फार्मूला y minus y1 is equal to m into x plus 2, तो क्या आ गया इक्वेशन 4x plus y what to the 8 plus 5 equal to 0, बेटा इसलिए आंसर इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है ना? इसको मान लो 2 और इसको मान लो 1, दोनों को सॉल्व करो, यू विल गेट द, क्या निकल जाएगा कोऑर्डिनेट, तो सॉल्व 1 and 2, तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जैसे क्लास 10 में किया था, कोई भी मेथड यूज करो, अथवा ये सॉल्विंग 1 and 2 कर लो, यू कैन डू इट, यू विल गेट x equal to this much, y equal to this much, कितना आता है क्वेश्चन x को तो क्वेश्चन तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करो करो, सो डायरेक्ट आंसर, देयरफॉर ये भी चाहिए था हमको, ठीक है ना? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज -27/17, 23/7, दिस इज नोन एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो जो परपेंडिकुलर जहाँ लगा है दैट इज नोन एज द, दिस इज नोन एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है? नेक्स्ट क्या बोला था हमने, व्हिच वन 5 r करो, ইমেজ মানে ইমেজ দেখো, মানে গ্লাসের মধ্যে ইমেজ দেখলে কই দেখা যায় ফিজিক্সে, ক্লাস 10 একটু আসলো না না, ফাইবার কোনটা কইছিলাম 11 না, আইকা দেখেন এটা কভার কিছু নাই, আচ্ছা যখন কোশ্চেন নাম্বার 5 যদি আমি দেখি, इमेज, इमेज क्या है, मान लो ये एक लाइन है, कौन सा लाइन है ये, x minus 3y plus 4 equal to 0, मान लो ये एक पॉइंट है 1,2, इसका इमेज क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा एकदम परपेंडिकुलर सीधा नीचे जितना ये वाला हो जाएगा इसका इमेज p डैश, ये अपने को चाहिए, ठीक है? कैमने जब होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर बार को तरफ में, जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड हाउ टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर,
Once you know photo perpendicular, then it will be the midpoint of PP dash. ठीक है ना? Just to first step क्या होगा? First step you calculate the foot of perpendicular using जो अभी हमने किया था इससे पहले. कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर था? 10. 10 को जैसे किया था, using that you find the foot of perpendicular. Once you find foot of perpendicular, then it will be the midpoint of, then foot of perpendicular को मान लो D ले लो. So D is the midpoint of PP dash. P dash. P dash को हम H के ले लेंगे तो वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट जॉब इज टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. नाम दे दो, इसका A, इसका B. स्टार्ट करो जस्ट लाइक यू प्रीवियस वन. स्लोप निकालो AB, स्लोप निकालो PP डैश का. इफ यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग दैट. स्लोप ऑफ AB को तो बोलो तो एक बोले. अच्छा, स्लोप ऑफ AB तो देख के हो जाएगा. स्लोप ऑफ AB हो जाएगा 1/2. पहले स्लोप ऑफ PP डैश, PP dash will be equal to -3. Equation of PP dash কত আছে? y minus 2 equal to -3 into x minus 1, which will give you 3x plus y minus plus 3, 5. 3x plus y equal to 5. इसको हम इक्वेशन 2 मानेंगे और इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, ठीक है ना? दिस इज इक्वेशन 1 एंड 2. सॉल्विंग 1 एंड 2 कत आइছে x एंड y कितना आया? x और y फोटो परपेंडिकुलर कत आइছে रे? 5/18 and 6/5. So the coordinate of D, that is your foot of perpendicular, is this one, 5/18, 6/5. ऐसे नहीं तुम्हारा सेम नहीं कत कत. So let P dash को हम H के ले लेते हैं. D is the midpoint of P dash. So midpoint formula लगाओ, H plus 1/2 x1 plus x2/2 is equal to D का कोऑर्डिनेट. ये वाला हमने क्या किया, इसको H के ले लिया और इसका कोऑर्डिनेट जो निकला 5/18, 6/5. तो H plus 1/2 is equal to 5/18. This will give you 9 or H equal to 5/9 minus 1, or it will be -4/5. This will be your H. K plus 2/2 will give you 6/3, or K will be equal to 12/5 minus 2, which will be equal to 2/5. So therefore P dash क्या आ जाएगा? যদি P dash ঠিক লাগে, that means you have done the calculation correct. এখন ইমেজটা কত হয়েছে বইয়ে? -4/5, 2/5 হ্যাঁ, তাহলে ওই 1 2 সলভিং এ ভুল হয়েছে. কত আছে ফুট অফ পারপেন্ডিকুলার? কত ইমেজ? কত? 6/5, 7/5. একটু আসেনি তো ভুল করেছো কত? স্যার ইকুয়েশন x1 10 17/10. এটা 17/10. चलिए इसको हम लोग लिखते हैं 17/10. y কত? 17/10 আর x কি রে, এটা কিতা আছে তো? হ্যাঁ, 3x plus y. चलो सॉल्व करते हैं. 3x plus y, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए. 3x minus 9y is equal to -12. 3x will cancel. 10x equal to 17. y is equal to 17/10. ये तो सही है. y equal to 17/10. तो x कितना हो जाएगा? 3x 5 minus 17/10. x is equal to 10 निलाम 50 minus 17. 33. 11/10. এটা हो गया 11/10. ঠিক আছে নি? তাহলে इसको करेक्ट कर लो. यहाँ गलती हुआ है, तुम्हें ठीक कर लो মনে है, ভুল করছো. So it will be 11/10. So it will be 22/10 minus 1. तो ये आ जाएगा 12/10, which means 6/5. This will be your x. Similarly यहाँ है 17/10. तो ये होगा 17/10 minus 2. यहाँ आ जाएगा 10 minus 3.
सॉरी 17 मीन्स 34 हो जाएगा. सो it will be 14 by 10 na, so it will be 7 by 5. So these and these you make it correct. It will be p dash will be equal to 6 by 5 comma 7 by 5. তোমরা ফটো পারপেন্ডিকুলারটা বার করতে ভুল করছিলে, এখানে বলেছিল, ঠিক তো? यहाँ गलती हुआ था, इसको करेक्ट करना. ठीक है, नेक्स्ट कौन सा था? So all the three sides of the triangles are given and you need to find the equation of the median. मान लो these are the sides they are given, ठीक है ना? तीनों साइड के इक्वेशंस लो. So ये थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है ना? What you will do, you will calculate one median, बाकी दो घर में कर लेना, because it will take some time. Equal to 0 ये वाला इक्वेशन, ये वाला मान लिया 2x minus 5y plus कोई भी तीन को तीन मान लो, and this is x minus 3y minus 6. सबसे पहले हमको करना क्या होगा, अगर तीनों चाहिए, मान लो तीनों नहीं चाहिए, मान लो अभी मैं से आई एम टॉकिंग अबाउट 80 ओनली, ठीक है ना? अगर तीनों चाहिए होता तो देन क्या करना पड़ता, तीनों वर्टेक्स निकालना पड़ता. अभी फिलहाल वी विल कैलकुलेट ओनली टू दीस टू वर्टेक्स, और तीनों चाहिए होगा तो यू कैलकुलेट ऑल थ्री वर्टेक्स. कैसे होगा, सॉल्व दीस टू, ये 1 और 2 सॉल्व करने से तुमको मिल जाएगा a, 2 और 3 सॉल्व करने से विल गेट c, 1 और 3 को सॉल्व करने से विल गेट b. एक बार निकल जाएगा तो देन d विल बी द मिड पॉइंट ऑफ bc, ठीक है ना? तीनों पॉइंट तो निकल गया, ये तो सॉल्व कर जाएगा, ये तो सॉल्व कर जाएगा, ये तो सॉल्व कर जाएगा. d इज द मिड पॉइंट ऑफ bc, मीडियन तो मिड पॉइंट, तो d निकल गया, a पता है, d पता है, तो 2 पॉइंट फार्मूला से इक्वेशन से निकल जाएगा, ठीक है ना? बट इट विल बी लेंथी वन, ठीक है ना? एक कर लो, एक मीडियन कर लो, बाकी घर पे कर लो. हालांकि बाकी वाला स्टेप तो इजी है, स्टार्टिंग से अगर एक लेंथी तीनों पॉइंट बार कर दो, ठीक है? दो दो करके यू हैव टू सॉल्व 1 2 2 3 3. ड्राइंग कर लो, एबीसीडी नाम दे दो तो इट विल बी इजी टू मार्क, ठीक है ना? पहले 1 और 2 सॉल्व करो, यू विल गेट इट. देन 2 और 3 सॉल्व करो, सी, देन 1 और 3 सॉल्व करो, यू विल गेट इट. तुम करो, करने के बाद एंड आंसर डायरेक्टली है. इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व कैसे, सॉल्विंग 1 एंड 2 कितना मिला, x कितना मिला, minus 42, y minus 16. That means your a coordinate is minus 42 comma minus 16. ठीक, क्वेश्चन टू चॉइस एक करो minus 42 comma minus 16. तुम्हारा ऐसे नहीं से ऐसे ना, अरे हम तो स्टूडेंट को नहीं जाने क्रॉस चेक करते, দুইজন আছে, দুজনের দুই রকম आंसर আছে, হ্যাঁ? সলভিং 1 and 3 কত আছে, সলভিং 1 and 3 মানে ইকুয়েশন বি কত, শোনো না, আচ্ছা বুঝছো তো আপনি, বুঝলে বাড়িতে করে নিতে পারবা তো, इजी ना? यू विल फाइंड सिमिलरली सॉल्विंग 2 3, सिमिलरली तुमको क्या मिल जाएगा, सॉल्विंग 2 और 3, यू विल गेट सी. ऐसे अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स वंस यू गॉट ऑल थ्री कोऑर्डिनेट, तीनों अगर तुम्हारा मिल जाएगा, देन यू कैन फाइंड डी, डी विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी प्लस सी बाई, ठीक है ना? तो हमको अगर डी भी मिल जाएगा, देन यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ ए डी, एक मीडियन. ऐसे करके बाकी मीडियन भी निकल जाएगा. बी कैसे होगा, ए और सी का मिड पॉइंट, फिर ये दोनों ऐड करने से, और सी एफ क्या हो जाएगा, ए और बी का मिड पॉइंट, ठीक है ना? ऐसे करके तीनों निकलना. काफी लंबा है, ठीक है ना? पहला पार्ट ही थोड़ा लंबी है, नेक्स्ट तो इजी है, सेम सेम आ गई, ठीक है? नेक्स्ट যে টপিকটা আছে, দ্যাট ইজ নোন এজ শিফটিং অফ ओरिजिन. ओरिजिन को शिफ्ट करना है, ठीक है ना? हाउ डू वी शिफ्ट ओरिजिन? मान लो कभी ज़रूरत हुआ कि ओरिजिन अपने को शिफ्ट करना है, ठीक है? जैसे मान लो पहले अपने पास कहाँ था? अरे यार, करते समय लगेगा.
আমরা এখন কি দেখতে চাই? শিফটিং অফ অরিজিন, ঠিক না? Shifting of origin. Shifting of origin actually কি কইতাছে? Suppose you have a origin, original origin তোমার কাছে একটা আছে. Suppose this is my original axis. This was my x, capital X, O, x dash, y, O, y. Small x, small y लिखते हैं ना, capital X, small x, small y लिखते हैं क्योंकि अभी शिफ्ट करके नया वाला के नाम capital Y देंगे. So write original वाला को small. ठीक है, दिस इज स्मॉल एक्स, मान लो स्मॉल एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, दीज आर स्मॉल. मान लो हमने जैसे यहाँ पर ओरिजिन कहाँ पर था, ये तो ओ है 0,0 था. अभी ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, मतलब वी हैव टू शिफ्ट द एक्सिस. दैट मीन्स वी आर शिफ्टिंग द एक्सिस. मान लो ओ से अभी ओ डैश हो गया, अभी नया एक्सिस इधर आ गया और नया वाई एक्सिस इधर आ गया. पूरा सिस्टम थोड़ा शिफ्ट हो गया, स्लाइड हो गया, ठीक है ना. थोड़ा धक्का देके उसको घुमाया नहीं, रोटेट नहीं किया, जस्ट शिफ्टिंग किया. रोटेशन इज डिफरेंट, शिफ्टिंग इज डिफरेंट. जेई में विल सी रोटेशन ऑल्सो. थोड़ा रोटेट भी कर दिया तो क्या होगा, यहाँ जस्ट धक्का दे दिया. कौन सा पॉइंट में धक्का दिया, मान लो एच कमा के. इसका हम लोग कैसे करते हैं, वी जनरली एज्यूम, मानते हैं कि नया जो एक्स है, एक्चुअली थोड़ा इजी तरीका है इसको समझने का. मान लो पहले जो एक्स था, पहले कहाँ से, यहाँ से लेके एकदम इन्फिनिटी तक एक्स था पूरा. अभी क्या हो गया, अभी थोड़ा छोटा हो गया उससे. लेंथ कितना छोटा हो गया, क्योंकि ये जगह तो एच है. तो नया जो एक्स है, पुराना एक्स से एच छोटा है, ठीक है. सिमिलरली नया जो वाई है, वो पुराना वाई से के छोटा है. एक्चुअली बेसिकली हम लोग करते क्या है, इसका मतलब क्या है, स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के. तो हम लोग मान लो किसी को शिफ्ट करना है, जैसे मान लो ये जो इक्वेशन है, मान लो ये वाला इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है. मान लो ओरिजिनल वाला में था x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 था. अभी सेम इक्वेशन को ये कौन सा रेस्पेक्ट में है, ब्लू इक्वेशन जो लिखा है, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन. अभी सेम लाइन को, उसी लाइन को बोल रहा है कि यू राइट दिस लाइन यूजिंग दिस वन, इसका ओरिजिन मान के. लाइन तो ही रहेगा, लाइन तो चेंज नहीं हुआ, बट ओरिजिन चेंज हो गया बोल के इसका रेस्पेक्ट में ब्लू लाइन का इक्वेशन ये था. अब इसका रेस्पेक्ट में तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसका रेस्पेक्ट में तो ये ज्यादा नजदीक आ गया, इट केम क्लोज ना, तो नहीं होगा, थोड़ा चेंज होगा. तो कैसे चेंज करते हैं, एक्चुअली आई नीड टू चेंज दिस वन. इसको अभी चेंज कैसे करेंगे, स्मॉल एक्स की जगह में कैपिटल एक्स प्लस एच डाल देंगे, स्मॉल वाई की जगह में कैपिटल वाई प्लस के. एच के तो दिया रहेगा हमको, कौन सा जगह में लेके जाना है. तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस एच माइनस के. ये हो गया नया इक्वेशन, इसी लाइन का नया इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन. समझ में आ रहा है ना. तो जैसे भी कोई भी इक्वेशन को अगर बोल रहा है कि हमने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, तो इक्वेशन का शक्ल चेंज हो जाएगा. हालांकि स्ट्रेट लाइन उसी जगह से पास कर रहा है, लेकिन लाइन ऑफ रेफरेंस जहां से हम लोग देख रहे हैं वो जगह चेंज हो गया. पहले हम लोग ओ से देख रहे थे, अभी हम लोग ओ डैश से देखेंगे, तो इक्वेशंस थोड़ा चेंजेस आएंगे. व्हाट विल बी द चेंजेस इन द इक्वेशन, वी विल रिप्लेस दिस स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई यूजिंग दिस वन. अभी देखो लेफ्ट राइट हर जगह में वही होगा. तुमको ऐसा लगेगा सर इधर जाएगा तो बढ़ जाएगा, इधर जाएगा तो एच क्या होगा, माइनस होगा. तो ऑटोमेटिकली इट विल टेक केयर ऑफ एक्स माइनस माइनस एच, ऑटोमेटिकली कैपिटल एक्स बढ़ जाएगा. तुमको ऐसा लगता है ना सर यहाँ पर अगर शिफ्ट होता तो यहाँ पर शिफ्ट होता तो क्या होता है, ये एक्स माइनस माइनस एच हो जाता, क्योंकि -3 यहाँ शिफ्ट होगा तो मान लो क्या -3 -4 कुछ ऐसा वैल्यू रहेगा, तो ऑटोमेटिकली इट विल टेक केयर ऑफ. तो फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं चाहिए, क्योंकि उस केस में एच माइनस हो जाएगा, इट विल ऑटोमेटिकली बिकम प्लस. तो फॉर्मूला तुम्हारा यही रहेगा, किसी भी क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो, फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो, कहीं पे भी चला जाए, इट विल बी ऑलवेज एक्स माइनस एच. ऑटोमेटिकली इट विल बी प्लस, क्योंकि उधर जाएगा तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा, एच नेगेटिव होगा, सो दैट विल बी ऑटोमेटिकली प्लस. सो ये है हमारा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन. रोटेशन नहीं है, ठीक है ना, जस्ट स्लाइड किया, धक्का दिया ओरिजिन को, इट्स नॉट ए ट्विस्टिंग. जैसे इसमें एक एग्जांपल था, हमने ये वाला देखा स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है ना, ये एक एग्जांपल 1 था, ठीक है ना. एक एग्जांपल देखा इस लाइन को शिफ्ट करके, और एग्जांपल्स दे सकते हो. मान लो ये है एग्जांपल कि
पुराना कोऑर्डिनेट है, मान लो P कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो ये एक पॉइंट ले लिया P। पहले मान लो इसका कोऑर्डिनेट था 3,4 विथ रेस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। अभी तुमको पूछा है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन विथ रेस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा। तो क्या करेंगे, ये तो पुराना था, ठीक है ना, तो नया x क्या होता है, पुराना वाला x माइनस h, तो नया x क्या हो जाएगा, ये तो पुराना x था -3 माइनस h तो दिया रहेगा। सिमिलरली नया y क्या हो जाएगा, पुराना y माइनस k, पुराना y क्या था 4 माइनस k, सो नया कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 माइनस h, 4 माइनस k। वी कैन ऑल्सो फील ऑल्सो, ये p डैश है, मतलब ओरिजिनल p वही पॉइंट है, बट अभी विथ रेस्पेक्ट टू ये वाला पॉइंट यू कैन एज्यूम इट। इससे देखो कितना दूर था, इसलिए 3-4 था। अभी देखो नया जो तुम्हारा ओरिजिन आया ये इससे नजदीक है, तो इसलिए दिस वैल्यूज आर रिड्यूस्ड बाय h पे, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट शिफ्ट होगा या फिर कोई इक्वेशन शिफ्ट होगा। क्लियर है, ये एग्जांपल 2 था, मान लो ये है, कोई भी इक्वेशन कैसे शिफ्ट होता है, ये भी कोई भी पॉइंट कैसे शिफ्ट होता है। You come to exercise 20J. Question number 1, 3, 5, 7 and 10. জানা না, ধরো একটু দেখাই দিই আমি সবটি না। হ্যাঁ, question number 1 টা কি কইছে, the origin is shifted from the 10 by translation of the axis, find the new coordinates. Origin is shifted to এত, তার মানে h, k দিয়ে দিয়েছে তোমারে 1 2, that is given 1 2, origin এনে শিফট করতে হবে, ঠিক আছে। and new coordinates of the point, তো find the new coordinate, old coordinate, that is small x small y, that is given 3 minus 4. So you are asked to find new, so new one we know x minus h, so that is your 3 minus 1, so it will be 3, and new y is equal to old y minus k, old y is minus 4 minus 2, so it will be minus 6, so it will be 2 comma minus 6. প্রথম आंसर এটা তো ঠিক না। third one, the origin is shifted to the point 0 comma 2, that means यहाँ h comma k है 0 comma minus 2 by translation of the axis. ये ट्रांसलेशन ध्यान देना, ठीक ना, कभी कभी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन होता है, तो बोर्ड में ओनली ट्रांसलेशन। the coordinates of the point become न्यू कोऑर्डिनेट, नया कोऑर्डिनेट दे दिया तुमको अभी, क्योंकि ट्रांसलेट किया तो कोऑर्डिनेट बन गया 3 comma 2, that means नया कोऑर्डिनेट है 3 comma 2. find the original coordinate, so you need to find original x. तो original x क्या होता है, कैपिटल x प्लस h, तो होता है 3 प्लस 0, तो ओरिजिनल x है 3, ओरिजिनल y होगा कैपिटल y प्लस k, कैपिटल y है 2 प्लस माइनस 2, सो दैट इज इट। तो ओरिजिनली कोऑर्डिनेट क्या था अपना 3 comma 0, এটা হইছে নি মনে, থার্ড এরটা। নেক্সট কোন সা था 7 না 9, 7 7 নেই 5 দিয়েছিলাম, আচ্ছা চলো 5 at what point must be it shifted, at what point must be the origin shifted, that means h comma तुमको नहीं पता है, कहाँ लेके जाना है वो नहीं पता है तुमको, so that the coordinate of the point becomes this, पुराना कोऑर्डिनेट होना चाहिए -4 2, और नया कोऑर्डिनेट होना चाहिए अपना, नया कोऑर्डिनेट बिकम 3 comma minus 2। तो अपने को पता है नया वाला इक्वल टू पुराना वाला माइनस h, तो नया वाला 3 इज इक्वल टू पुराना वाला -4 माइनस h, फ्रॉम हियर h इक्वल टू -7। सिमिलरली नया वाला y इज इक्वल टू पुराना वाला y माइनस k, -2 इज इक्वल टू 2 माइनस k, और k इज इक्वल टू 4। कहाँ शिफ्ट करना है, दैट मीन्स ओरिजिन को हमको -7 comma 4 पे शिफ्ट करना है। I think this was the answer for 5,
ঠিক আছে আবার কোনটা next 7 if you look at 7 number 7 number में क्या बोला है कि you have to origin कहाँ शिफ्ट हुआ है 1,1 so this is the shifting point they have shifted to 1,1 that means your hk is 1,1 this is given 1,1 and you have to find the new equations of this old equation is this one क्योंकि शिफ्ट हो गया तो इक्वेशन का शक्ल बदल जाता है वीएफसी सो कैपिटल x इक्वल टू स्मॉल x माइनस 1 which will be equal to capital X plus 1 similarly small y is equal to capital Y plus 1 बस यहाँ बिठा दो capital X plus 1 into capital Y plus 1 minus capital X plus 1 minus capital Y plus 1 plus 1 equal to 0 कितना आता है सिंप्लीफाई करने से xy y square इक्वल टू 0 ठीक है तो अभी देखो अगर कैपिटल x कैपिटल y में आंसर नहीं देगा तो लास्ट में यू कैन चेंज इट टू स्मॉल x स्मॉल y Sir, it is 9 number question. अच्छा बोले हमने 9 पे ले चलो 9 पे ले ठीक है सो ये 9 वाला ये तो आंसर ये नहीं होगा जो भी होगा ये सिंपलीफाई गॉट द आइडिया कैसे करना है 7 या 9 सेम स्ट्रक्चर है ठीक है 9 का आंसर क्या आता है xy इक्वल टू 0 तो इसको तुम स्मॉल में भी लिख सकते हो स्मॉल x स्मॉल y इक्वल टू 0 ठीक है श्योर गोल मिल जाए आंसर नंबर 10 ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन टू पैरेलल एक्सिस मतलब वही वाला जो हम लोग शिफ्ट करते हैं दैट शिफ्टिंग इज आल्सो नोन एज पैरेलल शिफ्टिंग बिकॉज़ देखो x एक्सिस जो नया जगह में गया दैट इज पुराना वाला x का पैरेलल है नया वाला y पुराना वाला y का भी पैरेलल है सो दैट शिफ्टिंग इज पैरेलल शिफ्टिंग ओनली थोड़ा नाम बदल दिया बस कुछ नहीं सो सिमिलरली h क्या है यहाँ पर शिफ्टिंग टू 1, -2 तो h हो गया अपना 1 और k हो गया अपना -2 तो सिमिलरली नया वाला x होगा सॉरी डायरेक्ट पुराना वाला लिख देते हैं तो स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस 1 स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y माइनस 2 तो बस यहाँ बिठा दो x और y के जगह में तो पुट दिस वैल्यू इंस्टेड ऑफ x y कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू 0 सो यू पुट x से जाएगा 2 into कैपिटल X प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y minus 2 capital Y minus 2 whole square minus 4 into capital X plus 1 plus 4 into capital Y minus 2 equal to 0 কত এটা করলে 2x square plus y square इसको सॉल्व करोगे 2xy minus 6 plus 2xy plus y square minus 6 ठीक है इस टाइप का कुछ बनेगा तो इसमें लास्ट में यू कैन सिंपलीफाई उसको वापस स्मॉल x स्मॉल y में लिख सकते हो जस्ट एक्सप्रेस करने के लिए ठीक है और यू कैन कीप इट इन कैपिटल X कैपिटल Y आल्सो ठीक है तो विद दिस वी कंक्लूड और एक टॉपिक है नेक्स्ट डे स्ट्रेट लाइन विल कंप्लीट दैट इज ऑन संडे आई थिंक ना